हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का 2024 का फाइनल पेपर। और ये है हमारे सामने सेट 1। और मैं जो आंसर्स आपको बताने वाली हूँ ना, वो एग्जैक्टली सीबीएसई की प्रेस्क्राइब्ड आंसर की के अकॉर्डिंग है। ये कोई हमारे अपनी ओपिनियन नहीं है। तो एग्जैक्टली ट्रू आंसर्स यू विल गेट इन दिस पेपर डिस्कशन। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसेक इज लोकेटेड विद इन। एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोसेक कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो इसका आंसर जो है वो आप देख सकते हैं। जैसे इसका आंसर जो है सीबीएसई ने भी करेक्ट जो माना था वो न्यूसिलस ही माना है। सो करेक्ट आंसर इज न्यूसिलस। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमें ऐड करना है और इसमें करेक्ट आंसर जो है दैट इज द ऑप्शन सी। या ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसका ऑप्शन आ जाएगा 3:1। डाई हाइब्रिड क्रॉस 9:3:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है 1:1 एंड टेस्ट क्रॉस है 1:1। सो करेक्ट आंसर है हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन की सी हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रहेगा करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन ह्यूमन द सेकेंडरी oocytes completes meiotic डिवीजन व्हेन। सो करेक्ट आंसर है इसका सी, इट इज़ पेनिट्रेटेड बाय द स्पर्म सेल। ये सारे आंसर जो है एग्जैक्टली सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट माना गया है वो है थर्ड और करेक्ट आंसर भी है ये, इट इज़ पेनिट्रेटेड बाय द स्पर्म सेल। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. Okay, now come to the next one. Next question is question number 5. A population is in a genetic equilibrium, Hardy-Weinberg equilibrium, for a genes with two alleles, dominant allele A and the recessive is small a. If the frequency of allele A is 0.6, then the frequency of genotype AA is. यहाँ पे आपको frequency निकालनी थी और इसका करेक्ट जो आंसर आ रहा है हमारा वो आएगा 0.48. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Come to the next one. Next question number 6. In the double helical structure of the DNA molecule, the strands are. यहाँ पे correct answer है antiparallel and complementary and option C is the correct answer. Option C हमारा जो है वो correct हो जाएगा. Option C. Okay, next one. Question number 7. In a transcription unit, the terminator is located toward the answer is D. 3' end of the coding strand is the correct answer for this question. Next question. 8. A woman with normal vision has a color blind father. She marries a man with normal vision. The percentage chances of their progeny being the color blind is. इसमें correct answer है हमारा option that is A, 25%. 25% is the correct answer. Question number 9 है, the vector of the dengue fever is. Correct answer is a female Aedes mosquito. Option A is the correct answer for this one. Okay, question number 10. Which one of the following pair is not correctly matched? Correct answer है यहाँ पे C, Moniscus purpureus that is citric acid. ये इसके लिए correct answer नहीं है, correct match नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका correct answer. Come to the next one. 11th question. Which one of the following is not a feature of plasmid? Correct answer that it's not a single stranded. Plasmid single stranded नहीं होते, तो इसका जो correct answer है वो option C, single stranded. Next question number 12. The pyramids of the biomass in sea is generally inverted because in sea the biomass of the fish exceeds that of phytoplankton. Option A is correct for this one. Now come to the next question, that is a reason assertion based question है हमारा. Question number 13 हम देख लेते हैं. RNA is unstable and can mutate at a faster rate. This is assertion and the reason the presence of 2 OH group is every nucleotide of RNA makes its labile and easily degradable. This is correct. So we can say that both of these two statements are the correct and reason is the correct explanation of assertion also. तो इसका correct answer जो आया है according to CBSE also correct answer है हमारा option A for this one. Okay, 14 देखते हैं. Question number 14. Virus infected cells produce interferons and next one, interferons can cause inflammation of the virus infected cell. Question number 14 का है यहाँ पे assertion is true but the reason is false. So the correct answer is option C. इसमें option C जो है वो हमारा correct रहेगा. 15 and 16 question भी देखते हैं. Question number 15. Assertion, specific enzymes are used to degrade the cell's wall in organism to isolate the DNA from the cell. Okay, that is true. Next reason, the fungal cell wall is degraded by the enzyme cellulase is not correct. तो ये false हो गया. इसकी वजह से यहाँ पे option जो है हमारा सही हो जाएगा option C. 15 में भी option C है. Question number 16. Loss of biodiversity can occur due to the overexploitation of the resources and the reason, introduction of Clarius granipaceus in Indian river has led to a decline in native Indian fishes.
ओके तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बोथ आर द ट्रू बट इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ऑल्सो इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हो गए हमारे एमसीक्यूज बेस्ड। सेक्शन बी भी हम देख लेते हैं। सेक्शन बी में नेम एनी 2 कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो यहाँ पे 2 इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आपको बतानी थी जो कि कॉपर रिलीजिंग हो। तो इसमें जो करेक्ट आंसर सीबीएसई ने दिया कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, कोई भी 2 आप लिख सकते थे। और उसके बाद स्टेट 2 रीजन दैट मेक दम इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें सीबीएसई ने दिया है कॉपर रिलीज फ्रॉम आईयूडी सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, रिड्यूस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म एंड इंक्रीज phagocytosis of the sperm. This is the correct answer. Okay. और ऑप्शंस में जो है नेम एनी 2 outbreeding devices that flowering plants have developed and explain how they help in encouraging cross pollination. इसमें यूनिसेक्सुअलिटी दे सकते हैं आप, रिसेप्टिविटी, रिलीज एंड रिसेप्टिविटी और स्टिग्मा आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ये दे सकते थे। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड ऑन डिफरेंट पोजिशन दे सकते हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या जेनेटिक इनकम्पेटिबिलिटी दे सकते हैं। जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन पॉलन ट्यूब, ग्रोथ इन द पिस्टिल। दिस इज द करेक्ट आंसर। कोई भी 2 ऑप्शंस आप यहाँ पे इसमें दे सकते थे। तो ये था हमारा इसका 17 का। कम टू द 18th क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन, ऑल्दो हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर 2 ब्लड रिलेटेड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे आपको इनमें डिफ्रेंशिएट करना था, 2 डिफरेंसेस बताने थे। कोई भी 2 आप दे सकते हैं। जैसे सीबीएसई ने आंसर की में 3 दिए हैं। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड, सिकल सेल एनीमिया So यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड, वेयर सिकल सेल एनीमिया इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. हीमोफीलिया more males than females are affected, whereas in sickle cell anemia affects both male and females equally. Then third is carrier unaffected female transmit the disease to some of her male offsprings, whereas सिकल सेल एनीमिया में आ जाएगा व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर द डिजीज इज ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग. तो ये इनमें से कोई भी 2 करेक्ट आंसर आप दे सकते थे. क्वेश्चन नंबर 19 है, दैट इज़ यहाँ पे आपको मैच करना है. फर्स्ट है ए पेपर वर्सामिनिफेरस. यहाँ पे ए जो आएगा वो आएगा हेरोइन, स्मैक, डाइएसिटाइल मॉर्फिन और ओपाइट. इनमें से कोई भी एक करेक्ट माना जा सकता है. यहाँ पे बी जो ऑप्शन में है वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. एंड सी जो है दैट इज़ द कोकेन, कोका एल्केलॉइड, कॉक एंड क्रैक. एंड टी जो है वो है स्टिमुलेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी एंड हेलुसिनेशन. तो ये था करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू सीबीएसई. हाफ ऑफ मार्क्स हर ऑप्शन के लिए दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 20, राइट द रोल ऑफ ORI एंड रेस्ट्रिक्शन साइट इन द क्लोनिंग वेक्टर PBR322. तो यहाँ पे आपको इसके बारे में बताना है. इसमें करेक्ट आंसर जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग रहा हमारे पास ORI साइट में बताना था. ORI साइट इज द साइट वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA. एंड द रिस्ट्रिक्शन साइट में आपको बताना था साइट ऑफ लाइगेशन ऑफ एलियन DNA और फॉरेन DNA और डिजायरेबल DNA टू द वेक्टर. ये करेक्ट आंसर माने गए हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग, जिसके आपको मार्क्स मिले हैं. क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारे सामने, व्हाई इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF is so named, state its importance. तो यहाँ पे IVF में आपको बताना था कि IVF में क्या है. ओके, एक क्वेश्चन रह गया. दैट क्वेश्चन नंबर 21, हाउ इज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन अफेक्ट द नेचर ऑफ द ड्यूट्रस एंड द टेम्परेचर. कैसे अफेक्ट करता है ये हमें बताना है इसके अंदर. तो यहाँ पे आंसर जो है ड्यूट्रस रिच इन लिग्निन, नेचर की बात करें लिग्निन एंड काइटिन रिच होगा तो स्लो डिकम्पोजिशन होगा. नाइट्रोजन एंड वाटर रिच होगा, सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर होगा तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्टर हो जाएगा. और एनवायरमेंट के केसेस में हम बता सकते हैं टेम्परेचर पे वार्म एनवायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन एंड लो टेम्परेचर इनहिबिट डिकम्पोजिशन. तो ये इसका करेक्ट आंसर है. हाफ ऑफ मार्क्स हर एक ऑप्शन के यहाँ पे दिए गए थे. ओके, नेक्स्ट वन. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 22 सेक्शन सी से. यहाँ पे है वाई इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सो नेम. तो IVF की फुल फॉर्म बतानी थी. फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी इज ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन सो दैट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. एंड इसकी जो इंपॉर्टेंस है, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस, इट्स हेल्प इन फर्टाइल कपल टू एंजॉयड पेरेंटहुड. दैट इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन GIFT एंड ZIFT. तो दोनों की आप डिफरेंसेस बता सकते हैं. कोई एक ही डिफरेंस यहाँ पे बताना था इन दोनों के अंदर. तो GIFT में ट्रांसफर ऑफ एन ओवम collected from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization. ये था GIFT. ZIFT में transfer of zygote or early embryo with up to 8 blastomere into the fallopian tube. ये differences है, दोनों को define आप कर सकते थे, तो वही करके यहाँ पे बताना था.
क्वेश्चन नंबर 23 है, फर्स्ट है राइट द कैरियोटाइप दैट जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैड डेवलप्ड फ्रॉम अ जाइगोट फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्सेस एग फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म। ओके, इसके अंदर आपको इसका कैरियोटाइप बताना है। तो यहाँ पे कैरियोटाइप हो जाएगा 44 प्लस XXY और 47 प्लस XXY, यहाँ मीन्स ये ऐसे करके आप बता सकते हैं 47 प्लस XXY और AA प्लस XXY, कैसे भी करके अगर आप लिखें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, 47 भी बता सकते थे। तो यहाँ पे आपको कैरियोटाइप में ये चीज़ मेनली मेंशन करनी थी। उसके बाद मेंशन एनी टू। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, ये किस तरीके की जेनेटिक डिसऑर्डर है वो भी आपको बताना था, तो इससे क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट है मेंशन द 2 सिम्टम्स ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर, गायनेकोमेस्टिया, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, स्टरलाइट इंडिविजुअल एंड ओवरऑल मास्कुलाइन डेवलपमेंट। एनी 2 सिम्टम्स यू कैन राइट। जितने मैंने बोले इनमें से कोई भी 2 अगर आपने दिए हैं तो आपको फुल मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है राइट द पॉसिबल रीजन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस XX एग। तो यहाँ पे आएगा फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स और क्रोमोसोम्स और नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमेटिड्स और क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन और गैमेटोजेनेसिस। ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अ वेरी स्मॉल सैंपल ऑफ ए टिश्यू और इवन ए ड्रॉप ऑफ द ब्लड कैन हेल्प टू डिटरमाइन। तो इसमें DNA फिंगरप्रिंटिंग का बताना था। DNA फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिक पैटर्निटी टेस्टिंग, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन DNA एंड द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल। अगर आपने ये लिखा है तो आपको मार्क्स मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है प्रोवाइड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन टू सब्सटेंट द स्टेटमेंट। तो ये हम बता सकते थे इसमें मीन्स क्या है दैट आइसोलेशन ऑफ द DNA एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ द PCR, डाइजेशन ऑफ द DNA, सेपरेशन ऑफ द DNA फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारी एक्सप्लेनेशंस आपको यहाँ पे देनी थी। एंड ब्लोटिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन, डिटेक्टेशन ऑफ हाइब्रिडाइज फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी, मैचिंग द DNA बैंड्स ऑफ फादर एंड चाइल्ड। तो सारे आपको स्टेप्स भी बताने हैं, हाफ मार्क्स फॉर ईच 6 स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पे मार्क्स दिए गए थे। ओके, नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच अमीनो एसिड गेट अटैच टू द RNA मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो था अमीनो एसिड्स एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP की प्रेजेंस में एक्टिवेट होंगे and linked to their cognate tRNA, a process called charging of the tRNA। अगर आपने charging of tRNA या amino acylation of the tRNA भी लिखा है तो भी करेक्ट है आपका है। that B है how does the translation process get terminated। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है at the end of the translation a release factor bind to the stop codon। तो stop codon के बारे में यहाँ पे बताना था UAA, UAG, that is UAA, UAG and UGA। So these stop codons when they come they can help in the termination of this process। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इसमें एक्सपेंड UTR बताना था, अनट्रांसलेटेड रीजन है और इनकी लोकेशन कहाँ होती है। दे आर प्रेजेंट एट दी बोथ 5 प्राइम एंड बिफोर द स्टार्ट कोडन AUG और एट द एंड ऑफ द 3 प्राइम एंड दैट इज आफ्टर द स्टॉप कोडन ऑफ द mRNA। तो ये इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 24 का। 25 में था डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड द सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स। आपको डिफरेंसेस बताने थे इन दोनों में, तो आप जितने भी डिफरेंस बताएं उसके बेसिस पे हाफ ऑफ मार्क्स आपको एनी 2 डिफरेंसेस के दिए गए हैं। ह्यूमरल रिस्पॉन्स में मीडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द बी लिम्फोसाइट्स इन द ब्लड एंड दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। इस तरीके से आप डिफरेंसेस दे सकते थे। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कहा गया है मीडिएटेड बाय द टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस दैम एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये आ जाएगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। उसके बाद आपको डायग्राम ड्रॉ करना था, वही एनसीईआरटी का डायग्राम है। हाफ ऑफ मार्क्स हर एक पर्टिकुलर लेबलिंग के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, द पिक्चर गिवन बिलो शोज। तो यहाँ पे क्या दिखाया है, इसमें करेक्ट आंसर है ए पार्ट, रूट्स ऑफ द टिपिकल कंट्रोल टोबैको क्रॉप प्लांट्स इन्फेक्टेड। तो दिस इज में इसमें क्वेश्चन जो सही है, इंट्रोडक्शन ऑफ द निमेटोड स्पेसिफिक जीन यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर, प्रोडक्शन ऑफ द बोथ सेंस एंड एंटीसेंस RNA। इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना था ना कि कैसे हो रहा है, तो इसके स्टेप्स में आ जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ निमेटोड स्पेसिफिक जीन यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर, प्रोडक्शन ऑफ द बोथ सेंस एंड एंटीसेंस RNA इन होस्ट सेल, प्रोडक्शन ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड DNA, RNA interference, silencing of the specific mRNA of the nematode, parasite could not survive in the transgenic host and transgenic plant is protected from parasite। So half a marks पूरे 6 steps के लिए दिए गए हैं। ओके, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना था ABCD। ए यहाँ पे होंगे मैमल्स, A आर दी मैमल्स, ए जो है वो है हमारे मैमल्स, दिस इज द मैमल्स। बी जो है बर्ड्स हैं, B आर दी बर्ड्स एंड C आर दी रेप्टाइल्स,
रेप्टाइल्स, एंड जो डी है वो है हमारे एम्फीबियंस। तो इनमें सबको आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। दिस इज द करेक्ट आंसर। रीड्रॉ द पाई चार्ट, तो ये हमने कर दिया। मेंशन द 2 एग्जांपल ऑफ रिसेंटली एक्सटिंक्ट एनिमल। कोई भी आपने जो भी करेक्ट आंसर दिए गए हैं वो ट्रू माने गए थे, बट इट शुड बी एक्सटिंक्ट, तो होना चाहिए था। जैसे डोडो, क्वैगा, देन स्टेलर सी काओ, उसके बाद 3 सब स्पीसीज जो है कहाँ पे मिल रही हैं, जैसे बाली, जावा एंड कैस्पियन ऑफ द टाइगर, ये सब एनी 2 कैन बी करेक्टेड। तो अगर आपने 2 करेक्ट स्पीसीज लिखी हैं आपको इसके मार्क्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रिडेशन इज रेफर टू एज द डिटरमिनेंटल इंटरेक्शन, एक्सप्लेन एनी 3 पॉजिटिव रोल सपोर्टेड बाय द एग्जाम्पल ईच दैट द प्रीडेटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ये तो एनसीईआरटी में भी आपको कोई 3 बताने थे। प्रीडेटर एक्ट एज कॉन्डक्ट ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल, ये आ जाएगा। प्रीडेटर की prey population under control. Predators help in maintaining species diversity by reducing the intensity of the competitions. Like ये थे ऑप्शंस, इनमें से कोई भी करेक्ट जो माने गए हैं उसके आपको मार्क्स मिल रहे हैं। सेक्शन डी आ जाता है। सेक्शन डी में हमें ये पैराग्राफ था, इसके बेस पे आंसर देने थे। स्टेट द साइट ऑफ एक्शन ऑफ एफएसएच इन द टेस्टिस एंड डिस्क्राइब द एक्शन देयर आफ्टर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का, सर्टोली सेल्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इंड्यूस रिलीज ऑफ सम फैक्टर विच इंड्यूस स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, ये था इसका आंसर। उसके बाद और ऑप्शंस में है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एलएच इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एलएच एक्ट ऑन लिविंग सेल्स एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे है माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन बताना है कि कहाँ पे हो रहा है। इसमें करेक्ट आंसर था स्पर्मेटोगोनिया। आपको स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो बनाते हुए दिखानी थी। इसमें हो रहा है माइटोसिस और डिफरेंशिएशन हो रहा है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 हो रहा है, एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स फॉर्मेशन में मियोसिस 2 होगा, वो चीज़ आपको बतानी थी। नेम द एसेसरी डक्ट दैट स्पर्म्स ट्रैवल थ्रू फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू रीच द एपिडिडाइमस। करेक्ट आंसर इज रेटिटेस्टिस एंड वासा एफरेंशिया। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में फर्स्ट में आप हमारे पास ऑप्शन आ जाए, नेम द ग्रुप ऑफ द सेल्स द HIV अटैक। तो इसमें करेक्ट आंसर है मैक्रोफेजेस एंड वायरस इन्फेक्टिंग RNA जीनोम, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। दोनों क्वेश्चन का आंसर है वेरियस इवेंट। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, नेम द ग्रुप ऑफ द सेल्स दैट HIV अटैक्ट आफ्टर गेनिंग एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी एंड राइट द वेरियस इवेंट दैट अकर विद इन द सेल्स। तो मैक्रोफेजेस है, उसके बाद वेरियस इवेंट में आ जाएगा वायरस रेप्लिकेशन। ओके, बी में है दैट राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इसमें एलाइजा के बारे में बताना था, उसको एक्सपेंड करना था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एंड से, और द PCR एंड द ट्रीटमेंट जो बताया तो एंटीवायरल ड्रग्स दैट ओनली पार्शियली अफेक्ट एज दे आर ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट। तो जिसने ये लिखा है कि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है उनको भी मार्क्स दिए गए थे। मेंशन एनी 2 स्टेप्स सजेस्टेड बाय द WHO। तो इसके अंदर है मेकिंग ब्लड HIV सेफ इन द ब्लड बैंक्स, यूज़ ऑफ द डिस्पोजेबल नीडल्स, सिरिंजेस। तो इसमें भी जिसने भी अच्छे से बना के कुछ भी पॉसिबल सजेस्टेड प्रिवेंशंस बताई हैं उनके मार्क्स उन्हें दे दिए गए हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस द मार्क्स आर गिवन to the students. Now next one, a patient suffering from the AIDS does not die of this disease but from the some another infection, justify this statement। तो इसके अंदर आपको ये सारी डिटेल्स ही बतानी थी कि कैसे HIV जो है वो दूसरी सेल्स को अफेक्ट कर रहा है, how this affect the immunity। तो this is the T lymphocytes that are responsible fight person become immune deficient and unable to protect oneself from other bacterial or viral or fungal or parasitic infections। इसके बारे में आपको बताना था डिटेल में। सेक्शन ई पे आते हैं। सेक्शन ई है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एन एंजियोस्पर्म। तो ये सारी प्रोसेस थी, डबल फर्टिलाइजेशन को आपको एक्सप्लेन करना था, सारी प्लॉइडी वगैरह आपको सब बतानी थी। एंड व्हाई डज द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रीसीड दैट ऑफ द एम्ब्रियो, सो टू प्रोवाइड एंश्योर न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये इसका करेक्ट आंसर था। थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखना है, तो उसके अकॉर्डिंग 1 मार्क्स का क्वेश्चन था वो दे दिया गया है स्टूडेंट्स को इफ़ दे आर प्रॉपरली मैंशनड अबाउट दिस। ओके, बी पार्ट है मेंशन द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम अकर, दैट इज एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन भी करेक्ट माना है, और इसके अलावा एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो दोनों ही आंसर करेक्ट हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, CBSE ने स्कीम में मेंशन किया है। और नेम द एम्ब्रियोनिक stage that gets implanted into the uterus, explain the process of implantation in the human female। इसका correct answer था that is blastocyst, and the trophoblast layer of the blastocyst get attached to the endometrium, inner cell must get differentiated into the embryo and uterine cells divide rapidly and blastocyst gets embedded in the endometrium of the uterus। ये इसका correct answer रहा। ओके, 32 पे है। 32 में आपको एक क्रॉस शो करना था, उस क्रॉस के अकॉर्डिंग मार्क्स आपको दिए गए हैं। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियोज आपको बताने थे, उसके बाद कंक्लूजन बताना था दोनों के अंदर क्या है।
लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए, इसमें मल्टीपल एलिलिज्म और इन कोडोमिनेंस दोनों आप बता सकते थे, तो उसके मार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं। ड्राई सिस्टेमेटिक एक्सप्लेनेटरी लेबल डायग्राम ऑफ लैकोपेरॉन, तो लैकोपेरॉन का वही सेम डायग्राम जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है वही आपको एक्सप्लेन करना था ड्रॉ करके। तो अगर आपने प्रॉपर्ली मेंशन किया है और सारे पार्ट्स लेबल किए हैं तो प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है, देन कंप्लीट मार्क्स विल बी गिवन। Why should a cell is made competent to take the DNA allele? तो DNA is a hydrophilic molecule and cannot pass through the cell membrane, ये इसका करेक्ट आंसर था। And how can a bacterial cell is made by competent using the calcium ion? explain, तो कैल्शियम आयन वाला रोल हमें एक्सप्लेन यहाँ पे करना था, कंप्लीट जो एनसीईआरटी में मेंशन है। दैट बैक्टीरियल सेल इज मेड कॉम्पिटेंट बाय ट्रीटमेंट द बैक्टीरियल सेल विद अ स्पेसिफिक concentration of divalent cation such as calcium which increase efficiency with which the DNA enters through the pore in its cell wall। ओके, इस तरीके से आंसर इसका देना था। ओके, नेक्स्ट वन है स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स। Explain the principle on which this techniques works. DNA fragments are negatively charged molecule. They can be separated according to their size by forcing them to move towards the anode under an electric field through the agarose gel. And the third, mention why ethidium bromide is used in technique to stain the DNA to visualize by exposure of UV radiation. ये इसका करेक्ट आंसर है। बी पार्ट है बीटी कॉटन, द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैज ग्रेटली हेल्प द कॉटन फार्मर टू इंक्रीज देयर क्रॉप यील्ड। हाउ वाज बीटी cotton plant made resistant to bollworm? explain, the specific bt toxin gene cry1ac and cry2ab isolated from bacillus thuringiensis bacteria and incorporated into the cotton plant to provide resistance to bollworm। ये इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ द bollworm फीडिंग ऑन द बीटी कॉटन प्लांट। इसमें पूरी प्रोसेस बतानी थी कि कैसे हो जाता है, तो इसमें हम वो बता सकते हैं कि अल्कलाइन पीएच पे जाके टॉक्सिक एक्टिवेट होंगे, देन दे विल कॉज द create the pores in the midgut of the epithelial cells, cause swelling, lysis and the death of the insect। ये था इसका correct answer। Okay, I hope this explanation will be helpful for you because you can get the exactly the correct answer according to the CBSE। In the next videos we will discuss the another set। Okay, thank you।